Good afternoon, all. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. पण आता लेक्चर आहे माझं. Good afternoon, all. Am I audible? Yes, ma'am. मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी की. आवाज आ रही है, मैम. एक मिनट. हाँ, सुबह से लेक्चर नहीं हुए क्या? आपको छुट्टी का नोटिफिकेशन आया था क्या? छुट्टी का नहीं आया था. 1 वीक वगैरह कुछ तो रहेगा ना. ओके. मैम, वो स्टाफ के लिए नोटिस आया था, तो वही हमें भी भेजा गया था, तो हाँ, वो तो 1 वीक की थी स्टाफ के लिए छुट्टी. ठीक है, हम लोग पहले वो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. आज बहुत कम लोग हैं. सुबह से लेक्चर ही नहीं हुए क्या आप लोगों के? फर्स्ट लेक्चर हो रहा है, मैम, अभी. ओके. मैं भी आधा घंटा लूंगी क्योंकि मुझे स्क्रूटिनी की कमेटी में भी काम है. नीचे से फोन आ रहे हैं तो मैं उसमें भी स्टाफ हूँ वेरिफिकेशन के लिए. विल कंडक्ट हाफ एन आवर. ओके. I'll share my screen and just first we will revise the things regarding the flip-flops because very few students are there. So I'm not going to conduct extra points like a excitation table. But we'll finish master slave JK flip-flop. That was remaining part. You need a truth table for each and every flip-flop. So you have to take down you have to note down it in a notebook. Then only you are able to realize the excitation tables. Otherwise, it is not possible to remember the things. You have to remember that truth table. Then only you can understand excitation tables. Okay.
Just today we will revise the things regarding the flip-flops. Do you remember the flip-flop and latches? Yes, ma'am, याद है. Yes. What is the difference between the latch and flip-flop? What is the difference between the latch and flip-flop? Anyone? Can you see the screen, all of you? Yes, ma'am. Okay. Can anyone difference between latch and flip-flop? Basic difference. मैम, हाँ. फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ 1 बिट मेमोरी स्टोर कर सकते हैं हम लोग. और लैच में क्या करते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन रहता है. फ्लिप-फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन रहता है. और another difference? There is difference between the edge triggered and level triggered. That is the basic difference between the latch and flip-flop. Edge triggered and level triggered. What do you mean by edge triggered and what do you mean by level triggered? What we have to consider? मैम, एज ट्रिगर जो रहता है वो जो क्लॉक का लीडिंग एज रहता है उस पर डिपेंड करता है, और जो लेवल ट्रिगर रहता है वो क्लॉक हाई और लो जो रहता है उस पे चेंज होता है. Yes, that is right. That is the main. Latch is the level trigger and flip-flop is basically edge trigger. Okay, that works on that principle. This is about the block diagram of the sequential circuit, that is consists of the combinational circuit as well as the memory elements. Okay, next these are the difference, because we have learned first two units are regarding with the combinational circuits and next is the sequential circuit. So you should know the basic difference between the combinational circuit and the sequential circuit. Can anyone? What is the difference between the combinational and sequential? Without observing the screen. Main difference? मैम, सीक्वेंशियल सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट ऐड हो जाता है, और जो सीक्वेंशियल सर्किट रहता है वो प्रीवियस आउटपुट या प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड होता है. कॉम्बिनेशन सर्किट में सिर्फ करंट इनपुट पे आउटपुट डिपेंडेंट होता है. Yes. और कोई आंसर दे दो नेक्स्ट. What are different combinational circuit you have studied? Any other student? Any one example of combinational circuit that you have studied? Subtractor code converter. Yes, subtractor, code converter, adder, anyone. And so in sequential you have to study the flip-flop shift register counter. वहाँ पे हमें क्लॉक लगता था क्या कॉम्बिनेशनल में कहीं पे? नो मैम. So clock input is not required in combination, but here sequential, for sequential we require the clock input. कॉम्बिनेशनल प्रेजेंट पे ही डिपेंड रहता है आउटपुट, तो वहाँ पे स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं. सो वी डोंट नीड अ मेमोरी एलिमेंट. एंड फॉर सिक्वेंशियल एज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस, एंड और प्रीवियस को पास्ट भी बोलते हैं या प्रीवियस इनपुट बोलते हैं. सो वी नीड अ मेमोरी एलिमेंट. Okay, these are the basic differences of the combinational circuit and the sequential circuit. ये याद ही करो, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट निकालो. अगर किसी को लिख के नहीं लेना है तो स्क्रीनशॉट निकालो और बाद में लिख लो बुक में, वो रहेगा ही. मैं जब असाइनमेंट दूंगी तो बेसिक क्वेश्चंस तो दूंगी ही, ठीक है. So flip-flop, that also we have seen this definition. I will directly go for the 1-bit memory cell, that is a flip-flop. Okay, these are the properties that Q and Q bar are always complementary. These are the basic things that you have to remember always. Okay, this will be
these things will be for the in same exam, that q and q bar, what should be the status of it, that they should be always complementary. नाम में ही है, यहाँ पे q बोल रहे हैं, इसको q bar बोल रहे हैं, so it is a complementary of this. Okay, so this is the diagram for cross coupled inverters as a memory element. This you can use. This circuit has a two states. What? Q is equal to 1 जब रहता है तो उसको set state बोलते हैं, and when Q is equal to 0, that we are getting it, okay, because these are the outputs. When Q is equal to 0, we are calling it as a reset state. Just only you have to remember these things also, then only you are able to analyze these things. हम लोग ट्रूथ टेबल में क्या बोल रहे हैं, एक बार 0 रहता है, एक बार 1 रहता है, तो उसको स्टेट एज रीस्टेट या नो चेंज ऐसे ही कुछ तो है ना टेबल में. तो आप लोगों को इसके हिसाब से ये पता चलना चाहिए कि सेट कब बोल रहे हैं, रिसेट कब बोल रहे हैं. ओके, so whenever q is equal to 1, this is a set state. Whenever q is equal to 0, that is a reset state. This इसको ही लैच बोलते हैं. जैसे अभी तक बोला हमने, लैच इज अ लेवल सेंसिटिव and flip flop is a edge triggered. Okay, so SR flip flop, that is a basic flip flop. From that flip flop where SR is a latch also and flip flop also. SR and D are the latches, and this D, JK, SR and T, that is a toggle. These are the flip flops. We have seen the SR flip flop also and working of this also, that is a set reset. You have to again realize the things whenever what is happening. If S equal to 0 and R equal to 0, circuit will be the same set, that is no change. See what I have told you about the truth table of the NAND gate. सभी के आंखों के सामने ट्रूथ टेबल है क्या अभी NAND gate का? Yes, ma'am. So tell me when it is a 1 and when it is a 0 output. मैम जब कोई भी इनपुट 0 रहता है तो आउटपुट हाई रहता है NAND गेट में, और जब दोनों हाई है तब सिर्फ लो रहता है. यस, उसके हिसाब से ये वर्क हो रहा है. तो हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ पे, ये देखो, अगर G3 G4 सेट और रिसेट क्या बोल रहे हैं, 0 0 आ रहा है. ठीक है, तो 0 0 आ रहा है मतलब एनी वन इनपुट इज अ 0. अभी तो यहाँ पे 1 ही है. सो एनी वन इनपुट इज अ 0 0. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ NAND गेट G3 एंड G4? 1 1. 1 year. Yes, so G1 is also getting 1 and G2 is also getting 1. लेकिन अगर 1 बोल रहे तो दूसरा इनपुट क्या है इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, पता है. So if I am saying suppose Q is a 0, so what will be the now input to G2? That will be 1 0. So what is the output now for G2? 1. 1. So Q bar is now 1. 1 is going here. So this is a 1 and this is again 1. So 1 1 for 1 1 you will get the 0. अलग से ले लो, कोई बात नहीं कि अभी यहाँ पे Q किसी को लगा कि मैं Q यहाँ पे 0 क्यों लूंगा, Q यहाँ पे 1 लो या 0 लो, you will get the same answer. So circuit will be the same state, that is a no change. Similarly you analyze the things already I have learned. We have conducted this lecture. We have conducted these points. Okay, हम लोगों ने पहले ये पॉइंट डिस्कस किए हैं. सो जस्ट रियलाइज द थिंग्स दैट व्हाट इज हैपनिंग इफ S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 0. आप लोग क्या करो, यहाँ से पेंसिल से लिखो एक बार और एनालाइज करो कि क्या क्या हो रहा है, तो इसके हिसाब से आपको ट्रूथ टेबल आ जाएगा. ठीक है, शुड आई गो अहेड बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन ऑल दिस थिंग, जस्ट आई एम टेकिंग रिविजन ऑफ इट. किसी को ये समझ में नहीं आया था, ऐसा कोई है क्या? See, because SR is the main flip flop. Am I audible or disconnect हो गई? Stop है तो. आ रही है मैम आवाज. Okay. हाँ, because SR flip flop से ही बाकी सब कुछ बना रहे हैं हम लोग. तो basically you should able to understand the working of the SR flip flop. हम लोगों को सभी चीजें डिस्कस करनी है
या शुड आई गो अहेड? क्योंकि कितनी भी बार डिस्कस करो, देखो आपको खुद से वो चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या करें, ये कंडीशन डिस्कस करें या नेक्स्ट पॉइंट पे जाए? मैम समझ में आ गया, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते एनी अदर? विपुल, सौरव, एनटीसीचं कोण आहे? ओके, चैताली। एक बार अगर मैंने ये बता दिया ना, तो बाद में आप लोगों को ले लो कंडीशन एस इक्वल टू 1 पुट अप करो, आर इक्वल टू 0, सेम अप्लाई द सेम concept, then you will really you can easily understand the things. Okay, now this is a clock SR flip flop. This is a truth table for this. Just you are applying clock here. Okay, so input, these are the two inputs, S and R. We are assuming that the clock is a high, so output, what is that? S, R and Qn plus 1. Qn plus 1, why we are taking it? Because you have to, there are the previous or past. See here, what we are saying? If S equal to and R equal to 0, the circuit will be the same state. That is a no change. That's why to represent that state, we are representing it as a Qn, and next state we are representing as a Qn plus 1. Okay? सो फॉर 0 0 वहां पे हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि नो चेंज है, सो नो चेंज दैट मीन्स दैट इज अ Q1, जो Q1 था वैसे ही यहाँ पे है। When it is a 1 0, you are getting the output as a 1. When it is a 0 1, output you are getting as a 0. And when there are 1 1, there is a one condition. What was that? उसको क्या बोल रहे थे हम लोग SR में? रेस कंडीशन। SR में रेस कंडीशन नहीं है, SR में नहीं है, वो JK फ्लिप फ्लॉप में है। 3 names I have told you. 1 1 में क्या आता है? This is a drawback of the SR flip flop, that whenever both the inputs are 1 1, there is a one condition is called as a forbidden condition or indeterminate condition, or it is called as a prohibited condition. मैंने आपको बोला था कि ये लिख के ले लो, क्योंकि कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जाम में। So you should know the name: forbidden condition or indeterminate condition or prohibited condition. Got it? मैम रेस कंडीशन भी तो शायद बोलते हैं। नहीं, रेस कंडीशन बाद में है जेके फ्लिप फ्लॉप में। एसआर में सिर्फ एसआर में सिर्फ इतना ही नाम है। नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप, कहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप? ओके ओके ओके, हाँ रेस कंडीशन भी है, लेकिन नहीं, इस बुक में तो नहीं दिया ऐसा। ठीक है, यूज टू अवॉइड रेस कंडीशन विद द जकर इन एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओ, रॉबिन रेस वहाँ पे है, वहाँ पे रेस कंडीशन है। ठीक है ठीक है। It has two inputs that we are saying JK and two outputs that QQR. This is the symbol. One clock signal, and these are the two asynchronous inputs. These are the preset and clear. This is the symbol of JK flip flop. This also we have seen that how it is going to work. There are the 4 modes of operation. That is a hold, set, reset, and hold, set, reset and toggle. Okay, so again go through it. This is nothing but ये कैसी डायग्राम है? क्या अलग दिख रहा है यहाँ पे एसआर और जेके में? ये जेके की थी और एसआर की थी। दिस इज अबाउट जेके। क्या चेंज है इसमें? मैम इसमें सिंपली फाइनल आउटपुट जो है उसे फिर एज ए इनपुट डाला गया है मैम जे और के में। That means there is a feedback, isn't it?
this q bar is fed to the j and q is fed to the k. That is the main difference. देखो कई बच्चों को क्या लगता है कि सेम ही डायग्राम है या कुछ तो गलत हो जाता है, तो आप लोग क्या करो कि डायग्राम्स तो बाकी के सेम है, जो चेंज है दैट only note down. You should have to note down that changes only, then it will be easy for you to study it. आपको ध्यान में रखने के लिए भी इजी जाएगा. वहां पे आपके खुद के वर्ड में लिखो कि यहाँ पे चेंज क्या है, उस डायग्राम में चेंज क्या है, क्योंकि बाद में काउंटर वगैरह है तो उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग डायग्राम्स है. ठीक है. So just we have discussed all these things also, just again realize the things accordingly. We'll see one by one. यहाँ पे कुछ तो हाँ मेरा last time गलत हो गया था. Mode of operation, first hold. Okay, what is the first condition? That is the j and k are a 0 0. See, when j is a 0 and k is 0, यहाँ पे सब कुछ लिखा है. तो क्या है यहाँ पे ओरिजिनल q and ओरिजिनल q डैश, वो क्या था 0 या 1, 0 था और 1 था. तो वो ब्लू में जो लिखा है लास्ट में Q और Q बार, वो 0 और 1 वो प्रीवियस है, मतलब ओरिजिनल Q एंड Q बार था. देखो यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था तो कुछ तो गलत हो रहा था. फिर से करते देखते. J is 0 and K is 0. Okay, and we are applying clock as a 1 1. What will be the output of this first NAND gate of J and K inputs? J का क्या, J का 1 रहेगा, क्यों 1 रहेगा? मैम NAND गेट है ना और J 0 है तो 1 Yes. आउटपुट देगा. हाँ, very good. So we are getting here as a 1. Okay. यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, K में भी 1 ही मिलेगा. 1 ही मिलेगा. अभी 1 1 आया है तो क्या करें यहाँ पे, we can't predict output of Q and Q bar because यहाँ पे अगर मेरा 0 है तो यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अगर 1 है तभी 0 आएगा. ठीक है. So see, we have to assume few things that the original Q was 0 and here accordingly Q bar will be 1. So we are assuming that Q is a 0. So now see, this 0 कहाँ पे जा रहा है ये Q का, अगर मैं इसको बोल रही कि प्रीवियस मेरा क्या था, ओरिजिनल Q 0 था, तो वो Q कहाँ पे जा रहा है देखो, K में इनपुट है या J में? K में. K में. Yes, just consider this blue one first because these are the previous things. So this is 0, this 0 is going to be here only. Okay, so what is now happening, 0 0 1 है, 0 0 1 है तो क्या 1 ही रहेगा मैम आउटपुट. आउटपुट 1 ही रहेगा. ठीक है. अभी ये देखो, ये 0 हम लोग बोल रहे हैं तो ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया तो 1 0 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. 1 आ जाएगा. अभी ये 1 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0. 1 1. सो यू विल गेट अ 0. सिमिलरली एनालाइज, क्योंकि देखो ये कितना कंफ्यूज होता है अगर बार बार देखते हैं तो आप लोग ऐसे लिखो, ऐसे ड्रॉ करो और फिर चीजें समझ लो, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है. 3 इनपुट रहेंगे, 4 इनपुट रहेंगे, देन ओनली also concept is not going to change for the NAND gate. What you have to remember that if any one input is a 0, NAND gate output will be 1, and the output to be 0 for a NAND gate. What is the condition? What should be the condition? मुझे NAND गेट का आउटपुट 0 चाहिए तो कंडीशन क्या रहेगी, इनपुट क्या चाहिए मेरा उसके लिए, ओनली एनी वन इनपुट शुड बी 1. Both inputs should be 1, ma'am. बोथ या अभी यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो All inputs should be 1, ma'am. High.
Yes, that is the correct word, that all input should be 1, because यहाँ पे 3 4 रहेगा तो 4 नहीं रहता है, लेकिन फिर भी समझ लो 3 इनपुट्स है तो क्या all 1 रहेगा, तभी इसका 0 रहेगा. If any one input is a 0, output will be 1. That is the only concept. Otherwise, it is a very simple. So second condition is a mode of operation, that is a reset. When we are saying that it is in a reset condition, it depends upon that what is the your value of q. When q is a 0, we are calling it as a mode of operation is a reset. Is it clear? Yes, ma'am. Then next mode of operation set. When we are saying, क्योंकि बाद में आपको ट्रूथ टेबल एक्साइटेशन टेबल फॉर्म करने हैं, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आप लोग कंफ्यूज मत हो कि सेट क्या है, यहाँ पे क्यू 0 है तो 1 है, सेट कब बोल रहे हैं, रिसेट कब बोल रहे हैं. जस्ट क्लियर दिस थिंग्स दैट when we are calling it is reset when q is a 0. When we are calling it is a set when your q is a 1, not q bar. We are observing q. Got it? Yes, ma'am. And this was the last condition for mode of operation of toggle. That SR flip-flop में it was a forbidden or race condition. Now here for the JK flip-flop mode of operation, that is a toggle. Toggle means it is switching between 0 and 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 continuously. Okay, so it is called as a toggling. See for 1, 1 what is happening now. Now we are providing see first it is in a red का observe करो. So 1 1 we are providing clock also, and here it is a 1 1. Okay, so both are 1 1, and we don't know the third input. Okay, so see we are giving the feedback. So use this feedback. This is the providing here to the J and Q bar. Correct. And Q we are providing here to K. Now we are assuming that it is a 0 and it is a 1. Okay. तो Q बार का कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे J में जा रहा है. तो अभी हमारे तीनों क्या है, J input 1 1 1. So what will be the output of the first NAND gate, upper NAND gate? 0. 0. Similarly for the K we are getting 0 here. So what is that? 1 1 0. 1. That we are getting as a 1, because any one input is 0, so we are getting the output as a 1. Now हम लोग किसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपर का या लोअर का? What should be the output for the upper? Yes, upper NAND gate. Upper NAND gate. So similarly go for the upper NAND gate. If any one input is a 0, we are getting the output as a 1. So green का देखो अभी ये करेक्ट वाला है. So यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1. Okay. So and here what is happening? 1 1 0. Yes, this one is going to be here, and now this is a 1 1. For 1 1 you are getting as a 0. See here the truth table that J K 1 1 है तो Q 1 आ रहा है, Q bar 0 हो रहा है, और वो previously blue में जो था वो original Q was 0 and original Q bar is a 1. From this we are finding out this, and we have now removed that forbidden condition, and we are getting this as a Q and Q bar. This is called as a toggle. We are seeing this D also. What is the changes in D flip flop? Just see the diagram. मैम डी में बस इसे डी इसलिए यूज करते हैं मैम क्योंकि इनपुट हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रखना चाहते हैं, तो सेम वाला आएगा ही नहीं. What about J and K? मैम कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा दोनों एक दूसरे का. दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट रहेगा. ओके, सो दीज आर द कनेक्टेड इन अ कॉम्प्लीमेंटेड वे. दैट्स व्हाई डेटा, एंड हियर सी देयर इज अ इन्वर्टर. So whenever it is a 0, we are getting output as a 0, and whenever it is a 1, we are getting output as a 1.
आप लोगों को इसके सिर्फ ट्रूथ टेबल है, जिस ज्यादा डीप में नहीं है। टी टाइप में अभी क्या हो रहा है, क्या चेंज है? It is again a JK flip flop. See, it is again a JK flip flop. D type flip flop is also a JK flip flop. What is the change in D and JK? मैम इसमें इनपुट सेम ही है दोनों में, जे और के दोनों में सेम। Yes, instead of inverting or complementary inputs, we are giving same input to J and K. Okay, so if J equal to K, just now we have seen the last operation of it, the resulting flip flop is referred as a T type flip flop, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि J भी 1 रहेगा, K भी 1 रहेगा, तो क्या हो रहा है, उसको टॉगल हो रहा है, सो उसको T type flip flop भी बोल सकते हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, सो व्हेनेवर T is a 0, output is a Q, and whenever it is a 1, output is a Q bar। एक ट्रूथ टेबल बाद में ही करो। सी, this is one point, that is a race around condition. When J equal to K equal to 1, then race around condition occurs. What it is race around? अभी क्या हो रहा था, टॉगलिंग हो रहा था ना, दोनों 1 है तब क्या हो रहा था इन JK फ्लिप फ्लॉप? यस, इट वाज अ टॉगलिंग। 1 minute. So these are the technical things that when it occurs, when the time period of the clock pulse is greater than the propagation delay of the flip flop। अभी definition तो पहले यूनिट में हो गई है, propagation delay क्या रहता है। So whenever the time period of the clock pulse, that is the width, is greater than the propagation delay of the flip flop, due to that output changes or toggles in a single clock period। So propagation delay is the speed of the operation of the circuits, and if it toggles even number of time, then the output is same. But if it toggles odd number of times, then the output is complemented। How to avoid this Robin race condition? इसको Robin race भी बोलते हैं और race around condition बोलते हैं। So what to do here? We can make it clock pulse smaller than the propagation delay. So to avoid it, 2 options are there. That is the master slave JK flip flop. You can go for the master slave JK flip flop, or you can go for the edge triggered JK flip flop। Okay. See, race around condition means क्या, यहाँ पे enable है, this high low high low high low is there। Okay, these are the J pulse। आप लोग वेवफॉर्म कैसे भी निकालो, कई कई बच्चों को लगता है कि ऐसे ही वेवफॉर्म मुझे ड्रॉ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी आप लोग निकालो, J की K की स्क्वायर ही निकालना है, सिर्फ कैसे भी निकालो। What is important that you have to send, you have to observe first enable, then the value of J and value of K, then only your output is going to change accordingly if you know the truth table। Okay, see here race around condition, अभी ये क्या है, enable high है। Okay, so enable high है तभी ये J और K वर्क करेंगे। so enable high मतलब यहाँ पे J क्या है, यहाँ से देखते हैं पहले, चलो यहाँ इस पीरियड में क्या है, एनेबल हाई है, ठीक है। सो जे क्या दिख रहा है, क्या ये मेरा एरो दिखता है क्या, मैं जहाँ पे एरो पॉइंट आउट करती हूँ? यस मैम दिखता है, जे लो है अभी जे लो है और के क्या है, के हाई है, के हाई है। तो 0-1 कंडीशन है, 0-1 कंडीशन के लिए ये क्या हो जाता है, रिसेट स्टेट में जाता है। सो अभी क्यों मेरा हाई है पहले, तो यहाँ पे ये रिसेट में जाएगा। गॉट इट? यस मैम। गॉट इट? कब तक जाएगा, अभी देखो यहाँ पे देखो, जब तक ए 0-1 में है तब तक जाएगा। अभी यहाँ पे मेरा एनेबल हाई है, यहाँ पे क्या है, जे हाई है, हाई है, मतलब हाई है मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग डिजिटल में, सेट कंडीशन, सेट कंडीशन में जाएगा। अभी अभी सेट कंडीशन में जाएगा क्या, जे की वैल्यू सिर्फ बताओ दो हमें, मुझे क्या है, 1 रहेगी या 0? 1 रहेगी मैम। यस, यहाँ जे इज अ 1 एंड व्हाट अबाउट के? के भी 1 है।
1 है, तो J1 रहता है, K1 रहता है, तो क्या होता है ये Q टॉगल होता है. सो दैट विल बी गो 0 1 0 1 0 1. कब तक कैसे करेगा वो, ये पीरियड वगैरह सब कुछ प्रोपोगेशन डिले इस पे डिपेंड रहता है. ठीक है, ये देखो, ये कब तक होगा मेरा, जब तक एनेबल यहाँ पे हाई है और ये 1 1 है. अभी यहाँ का देखो, एनेबल यहाँ पे क्या है, लो है. लो है. ये क्या है, जे और के दोनों 1 है. जे और के दोनों 1 है. लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 0 है. ठीक है, ये मतलब ये देयर इज अ नो चेंज. Why? Because enable, whenever enable is working, then only your circuit is going to work. Now again you are work, it is going to work when enable is a 1. Now यहाँ हमारा अभी यहाँ पे क्या है, enable 1 है. देखो, एक बार एक वेवफॉर्म समझ में आई तो आप लोगों को बाकी के सभी वेवफॉर्म समझ में आएंगे. अगर एक बार ये वेवफॉर्म नहीं समझ में आएगी तो बाकी के वेवफॉर्म्स भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बाद में आपको लास्ट यूनिट माइक्रो कंट्रोलर भी है, या नेक्स्ट ईयर आप माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ने वाले हो, तब ऐसे ही वेवफॉर्म है और ये सब इस पे डिपेंड रहता है. ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मेरा एनेबल इस रीजन में हाई है, एनेबल हाई है. यहाँ पे क्या है, जे 1 है, के भी 1 है. के भी 1 है. तो इतने पीरियड के लिए जे और के 1 1 है, तब तक ये क्या रहेगा, टॉगल होगा. ओके, लेकिन यहाँ पे एनेबल हाई है, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 0 में क्या होगा, क्यू हाई रहेगा, सेट कंडीशन. सेट कंडीशन. तो देखो यहाँ पे क्यू सेट में गया, ये इट इज गोइंग टू बी हाई. अभी मेरा एनेबल 0 है, सो इट विल बी कंटिन्यू एज इट इज, इट विल बी रिमेन इन सेम स्टेट, डजंट मैटर हियर क्या हो रहा है. यहाँ पे अभी 0 0 हो रहा है, तभी कुछ इशू नहीं. अभी यहाँ पे देखो एनेबल फिर से हाई है, हाई है, यहाँ पे 0 है, जे इज 0 है क्या, जे 0, यस मैम, जे और के दोनों 0. यस, ए 0 है, के 0 है, तो 0 0 में हमारा क्या था, नो चेंज, जैसा पहले वैसे ही रहेगा. यस, नो चेंज. तो अभी हमारा हाई रहेगा तो लो को नहीं जाएगा, इट विल बी हाई एज इट इज. कब तक जाएगा ये देखो, जब तक आपका एनेबल क्या है, फिर से हाई नहीं हो रहा है. व्हाट इट, सो अभी मेरा फिर से एनेबल हाई है, इस पीरियड के लिए ये 1 है और ये 0 है. सो 1 0 के लिए क्या है, सेट कंडीशन. set condition. So that's why this much only line that is in a set condition. Again here enable is high, here it is 1, it is here it is a 1, so again it is going to be toggle. सभी को वेवफॉर्म समझ में आई, क्योंकि देखो अगर आप लोग बुक पता नहीं इनसे मैंने बोला जैसे रिटर्न रहेगी, तो आप लोग अलग अलग वेवफॉर्म निकालोगे, कॉपी करने से कोई फायदा नहीं रहेगा. आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि आप लोगों ने आप लोगों का 0 कहाँ आ रहा है, 1 कहाँ आ रहा है, एनेबल कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको अपना आउटपुट मिलेगा. दैट विल बी द नेचर ऑफ द क्यू वेवफॉर्म एंड दैट विल बी डिफरेंट. अगर आप लोगों ने इसके अलग अलग निकाला, किसी को लगेगा कि मैं यहाँ पहले जे हाई करता हूँ, ये लो करता हूँ, कितने भी पीरियड के लिए कुछ भी करो, डजेंट मैटर. इफ यू नो द कंसेप्ट यू कैन ड्रॉ द आउटपुट. सभी को समझ में आया, यस मैम. आणखीन कोणीतरी रिप्लाय करा. यस देखो हम लोग कॉलेज में थे तब पहले ऐसे ही लगता था कि अरे ये ऐसी की ऐसी ही निकालनी है क्या, तो कई बच्चे कॉपी भी करते हैं कि ऐसे की ऐसे ही निकालनी है, लेकिन गलती से भी इतना आगे पीछे कुछ भी किया और यहाँ अकॉर्डिंगली आउटपुट इज नॉट गोइंग टू चेंज, यू विल गेट डायरेक्टली 0 मार्क्स. ओके, सो डोंट हेजिटेट और डोंट कंफ्यूज कि हमें ऐसा ही निकालना है, कैसे भी निकालो, सिर्फ आपको ट्रुथ टेबल याद रहना चाहिए
एनेबल हाई है या लो है ये देखना चाहिए और उसके हिसाब से यू कैन ड्रॉ द आउटपुट। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। SR लैच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप में। इसके एप्लीकेशंस बाद में एक फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल होने के बाद सभी एप्लीकेशंस ही है, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। बोलो। मैम जो दो टॉगल हो रहा था उसके बीच में जो आउटपुट है वो हम कैसे देखेंगे, हाई है कि लो है? जैसे ए और बी के बीच में लो है, उसमें इनेबल भी लो है, बट सी और डी के बीच में इनेबल लो है बट वहाँ पे हाई है, तो मैम ये कैसे देखेंगे? ओ क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा नहीं है, एनेबल लो है तब भी वो कंटिन्यू ही होता है एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे एनेबल लो है, ये 1 1 है, नहीं 1 1 है क्या? हाँ 1 1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्क नहीं होगा। अभी यहाँ पे मेरा ये टॉगल करते वक्त ये पॉइंट पे इस एज पे ये लो गया है, तो ये लो ही रहेगा। गॉट इट? अभी सी का देखो, सी का क्या हो रहा है, या सी मतलब सी तो यहाँ पे एरो किया है, लेकिन देखो इस एज को आपको प्रॉब्लम है ना, एनेबल लो है यहाँ पे। यस मैम। एनेबल लो है लेकिन A1 है, A1 है, तो यहाँ पे टॉगल नहीं हो रहा है। अभी ये देखो टॉगल की कंडीशन मेरी क्या गई है, यहाँ से यहाँ गई है, इसलिए वो हाई है। अगर आपका यहाँ पे ही एंड होता, ठीक है, अगर मुझे ये दो ही पल्स मैंने निकाली और यहाँ पे ही ये लो हो जाता है एनेबल, तो मेरा क्या रहता, यहाँ पे नीचे लाइन आ जाती। आ गया समझ में? तो मैम ड्रॉ करते समय इस बात का कैसे ध्यान रखें? इस बात का यही, टॉगल की आप लोग विथ कितने रख ले, ये तो इक्वल रखनी पड़ेगी आपको। आप टॉगल सिर्फ करो, यहाँ पे हमें क्या है 1 1 के लिए सिर्फ एक टॉगल हो रहा है, इतना ही है, ठीक है। तो एनेबल हाई है और तब 1 1 जब जेके है तो वी आर गेटिंग द टॉगलिंग आउटपुट। ओके, तो मुझे अगर यहीं पे आ रहा है 0, यहाँ पे मेरा टॉगल हो रहा है इस एज पे, और यहाँ पे मेरा एनेबल लो हो गया, तो दैट विल बी कंटिन्यू एज इट इज लो। यहाँ पे मेरा ये ऊपर गया है और तब एनेबल लो गया है, इसलिए मेरा ये हाई है। ओके मैम, मतलब विड्थ का ध्यान रखना पड़ेगा टॉगल बनाते समय। हाँ वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे ये लो गया है, एक आप बोल रहे हो वैसे, एनेबल जब लो है तब ये एज लो गई है Yes, 3 ma'am. वाजेपर्यंत का। बरं ठीक, 1 मिनिट, तुम्ही तो फॉर्म चेक केला का आता BSc चा? बरं ठीक आहे, बघते मी। हाँ समझ में आया ना? Yes, ma'am. अभी यहाँ पे भी अगर मेरी एज हाई जाती तो मेरा यहाँ पे हाई हो जाता। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर whenever the enable is a low, it will be continue as it is because it is not going to work at all. It will be remain in a same state. I think we should stop here. Preset and clear का बोल दूं क्या? फिर ये बाद में लेते हैं, एक ही पॉइंट लेते हैं, preset और clear, then we'll end. Okay, there are 2 more inputs for JK, that is a preset and clear. Can you see the circle around it? इसको बबल बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फिर? दिख रहा है क्या सर्कल? Yes, ma'am. देखिए। यस, इसको बोलते हैं एक्टिव लो। जब एक्टिव लो रहता है तब भी ये बबल कर निकालते हैं, और इसको इन्वर्टेड भी बोलते हैं। तो बबल जब रहता है तो एग्जैक्टली रिवर्स वर्क करता है। सी टेबल, ट्रुथ टेबल फिर से देखेंगे हम लोग तो ज्यादा क्लियर होगा। सिर्फ अभी प्रीसेट और क्लियर क्या होता है ये देखते हैं। A low at the preset input sets Q equal to 1, मतलब यहाँ पे लो है preset, तो क्या हो रहा है, Q equal to 1 मिलेगा, that will be active. okay, and low at the clear input, मतलब अगर clear लो है तो क्या हो रहा है, सेट्स, इट सेट्स Q इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे सेट रिसेट में डोंट आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जब प्रीसेट एक्टिव लो है तब वो वर्क होगा, देन Q इक्वल टू 1। व्हेन क्लियर इज अ लो, देन Q
Q is equal to 0. That's it. These are the main 2 points. See? So why we needed this preset and clear conditions? Why we required it? Whenever the power is switched on, जब हम लोग सर्किट ऑन करेंगे तो क्या रहेगा स्टेट ऑफ द सर्किट? यू कांट प्रेडिक्ट, दैट कैन बी 0 और 1. अभी हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस 0 1 में जो रहता है उसके हिसाब से वी आर गेटिंग एट द आउटपुट. ओके, सो इन मेनी एप्लीकेशंस व्हाट इज रिक्वायरमेंट? दैट यू हैव टू रीसेट और सेट द फ्लिप फ्लॉप. जैसे कि फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन एक काउंटर भी है. जो काउंटर जब वर्क होगा तो क्या रहेगा? काउंटिंग अब मुझे 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, इजंट इट? और अगर वहां पे 8 9 है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 0 सेट करना पड़ेगा. यस, हमने सर्किट ऑन किया क्योंकि पहले बार मेरा वहीं पे स्टॉप हो गया था, तो मैंने फिर से ऑन किया तो मेरा 8 से चालू हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रीसेट द सर्किट. So that conditions are accomplished by using direct कोई क्या बोलते हैं? Asynchronous inputs, and these are referred as a preset and clear inputs. Okay, and these inputs may be applied at any time between the clock pulses. कभी भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि in between circuit. They are the highest priority inputs. What do you mean by highest priority inputs? हाईएस्ट प्रायोरिटी. अगर हम लोग बोले कि क्लास में अगर मुझे बात करनी है, आई हैव टू से समथिंग, देन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा? चुप बैठना पड़ेगा. यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू मी एज अ टीचर, इजंट इट? यस मैम. अगर क्लास में प्रिंसिपल सर आ गए और उनको बात करनी है तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? टीचर को या प्रिंसिपल सर को? यस, उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा? एज ए टीचर आई हैव टू कीप साइलेंस. Sir will say something first. So what do you mean? We are giving the highest priority. So preset and clear, that you have to remember that they have highest priority. जब भी वो करना है you can immediately apply it. Okay, depending upon your application. Okay, we'll stop here. In next lecture we'll see what are the changes, because already we have seen the SR flip-flops. Now what you have to do? You have to study again SR flip-flop with preset and clear. See, I am saying मास्टर्स लेवल कल हो जाएगा नहीं नेक्स्ट. ये देखो ट्रूथ टेबल वगैरह जो मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग ट्रूथ टेबल निकालो. अगर स्टॉप करना है कहीं पे मुझे बीच में तो आप लोग बोलो कि मैम रुको मैं निकालता हूँ. हम लोग निकालते हैं क्योंकि आप लोगों के पास ये डेटा चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. एज अ टीचर ऑल्सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज मेनी टाइम्स, बट फॉर यू इट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो. सो दैट्स वाई you should have a data with you, then only you will get the things. Got the concept of preset and clear now? Yes ma'am. What is the condition of Q when preset is pressed? प्रीसेट प्रेस करेंगे तो क्यू का स्टेटस क्या रहेगा? 1 रहेगा. यस, एंड व्हाट अबाउट क्लियर? 0 रहेगा क्यू. यस, क्लियर ध्यान में रखो, क्लियर करता है मतलब 0 रहेगा तो दूसरा 1 रखना, इतना ही. ठीक है. कोड फॉर टुडेज लेक्चर इज 38. ओके, ओके. शुड आई एंड द मीटिंग? ओके, थैंक यू मैम. और कंटिन्यू, मतलब ये देखो लेक्चर बीच बीच में मत मिस करो इस एटलीस्ट इस यूनिट के लिए, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. अभी देखा आपने SRJ के वगैरह, वैसे ही उसके एप्लीकेशंस भी है ना. थोड़े सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं आपको, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर.
अगर लास्ट लेक्चर का कुछ समझ में नहीं आएगा तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं पाओगे आप, कुछ समझ नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है? शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? यस मैम। ओके।